Hello my dear students, how are you? This video is in continuation with the unit gravitation which is going on already, and let me give you a brief recap what all topics we have covered and the remaining topics we will discuss in this lecture. Okay, so in gravitation chapter you already studied about Newton's law of gravitation. You already studied about acceleration due to gravity and its relation with universal gravitational constant. We also covered the variation of g, small g, with height and depth. You know the relation that g changes with height as per relation g is equal to g dash 1 minus 2h by r, and g also changes with depth according to relation g dash is equal to g 1 minus d by r, where d is the depth below Earth's surface and h is the height above Earth's surface. Out of these two relations, in the relation of variation of g with height, h must be smaller than r. We also studied about how to calculate gravitational potential energy. हमने रिलेशन ड्राइव किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी एम एम बाय आर, gravitational potential energy, and this r is representing the radius of Earth. So this formula is giving you potential energy on the surface of Earth. This energy will always come negative, and if we will give the same amount of energy, it means the plus gmm by r to any object whose mass is m and that is on the surface of Earth, it will gain sufficient energy to leave the Earth gravitational field and will go to infinite distance. Comparing this magnitude of energy gmm divided by r with half mv square, we can calculate escape velocity, which we already calculated, and its value will came out to be root 2 gm by r. So we have studied the relation for gravitational potential energy minus gmm divided by r. We calculated value of escape velocity, that is root 2 gm by r from surface of Earth. M is the mass of Earth, or we can also put the mass and radius of any planet or satellite from where we want to launch our object into space to infinity. Escape velocity. We already studied about orbital velocity when we compare mv square divided by r, the radius in which object is moving around a planet, when this centrifugal force which is working away from the center is balanced by gravitational force gmm by r square, then we can calculate the value of orbital velocity, that is root gm by r. Near Earth's surface, when your r is approximately equal to capital R, value of orbital velocity we can calculate by putting the values of these constants. 6.67 into 10 to the power 11 mass of Earth, 6.2 into 10 to the power 24, divided by radius of Earth, 6.4 into 10 raised to power 6, and then when we'll solve this relation, this orbital velocity will come approximately 7.91 kilometer per second near the surface of Earth. That is the concept of satellite also, how a satellite is revolving around a planet without falling. All these topics we have discussed. Numerical value of escape velocity from surface of Earth is 11.2 kilometer per second. So these two values, escape velocity is root 2 times the orbital velocity, as you can see, root 2 gm by r and root gm by r. Okay, so orbital velocity is the velocity by which an object will become satellite of some planet, and escape velocity, if by which escape velocity some object is thrown, it will go to outer space and will never come back. Root gm by r. Numerical value for Earth
approximately 11.2 kilometer per second. Numerical value near Earth 7.91 kilometer per second. So concept of potential energy, escape velocity, orbital velocity, variation in g with height and depth, Newton's law of gravitation, acceleration due to gravity, universal gravitational constant. So the topic which is left for today's discussion, the first topic which we will discuss is about gravitational field intensity, okay, which is represented by Ig. Let me tell you, first let me define its definition. A gravitational field intensity around any mass like Earth mass m at some distance r at any point. Suppose some mass small m is there. We know that by Newton's law of gravitation, the force of attraction on this object is going to be gmm divided by r square. Now field intensity, gravitational field intensity is defined as force per unit mass. It means if we divide the force on an object by mass of that object itself, force on an object due to some other mass, because we are calculating field intensity due to this bigger mass. Field intensity we are calculating due to bigger mass. So field intensity is defined as force on some small mass due to that greater mass, force on some mass, gravitational force, divided by mass itself. Or we can say force on unit mass. Like if we are having 1 kg mass, then force on that 1 kg mass at any distance r is defined as gravitational field intensity at that point. So for calculating gravitational field intensity, if I will divide this force by mass of object, I will get m se m cancel and I will get gm by r square, which is already a familiar term. Force divided by mass is going to be acceleration, and gm by r square is known as acceleration due to gravity in case of Earth. So gravitational field intensity of Earth indeed is acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity is a vector quantity which is also known as gravitational field intensity, which is defined as force per unit mass. And we already know if we divide force by mass, it gives us acceleration. And in case of gravitation, this force divided by mass acceleration is known as acceleration due to gravity. So I'm telling you again that gravitational field intensity is nothing but acceleration due to gravity. Gravitational field intensity आपका acceleration due to gravity ही होता है. It is a vector quantity. इसकी direction हमेशा towards center of earth होती है, और इसका फार्मूला भी जो है वो gm by r square है. अगर आप surface of earth पे कैलकुलेट करेंगे तो आप कैपिटल R पुट कर देंगे r की वैल्यू. If you are at r distance from center of earth, आप r पुट कर देंगे. So that is known as gravitational field intensity. Let me come on the other topic. सेकेंड टॉपिक हमारे पास आज के वीडियो लेक्चर के लिए है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट मास. यानी कि अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाने का, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिवाइड कर देंगे, यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम उसको मास से डिवाइड कर देंगे यानी कि माइनस gm बाय r, तो वो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, vg इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. So do not get confused. On simple V हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए. क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा ना, V is equal to IR. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है V. It is defined as work done in bringing some object which is also equivalent to gravitational potential energy. U से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, work done और the gravitational potential energy divided by mass of the object.
दिस दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि वर्क डन पर यूनिट मास। किसी पर्टिकुलर सपोज मास 10 kg को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाने में, अर्थ के सेंटर से अगर हमने सपोज 10 kg मास को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर हाइट तक लाने में 1000 जूल वर्क किया, दैट इज नेगेटिव -1000 जूल, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होएगी। तो उस -1000 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं उसके मास से, तो मेरे पास -100 जो है वो पोटेंशियल आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी, क्योंकि ऊपर हमारे पास एनर्जी है और नीचे हमारे पास मास है। तो -100 जूल पर केजी मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट का। तो आपको पता है कि आपका जो U का फार्मूला है वो क्या है, आपके पास U का फार्मूला है -GMM/r, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हम इसको मास से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, m से m कैंसिल हो गया, आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आ गया आपके पास, -GM/r। और यूनिट क्या हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट आपके पास हो जाएगी जूल पर केजी, क्योंकि एनर्जी आपकी जूल में है और वो मास है। तो -GM/r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट all the points is negative, like gravitational potential energy only at infinite distance from some planet, gravitational potential energy भी जीरो होगी और gravitational potential भी जीरो होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो you can always ask me in comment section or in live class when I'll take tomorrow. You can ask me any question which is related to this. After this, these two simple topics, the next topic is geostationary satellite. We already discussed the concept of satellite. There is one more brief discussion of 5 minutes and I will discuss the third and the last topic, geosynchronous satellite, and after that our topics and derivations for the unit gravitation are complete. Okay. तो अभी हमने पढ़ लिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, और अब तीसरा टॉपिक है हमारा जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस, जैसे इनका नाम बता रहा है आपको कि दे आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू जियो। जियो रिप्रेजेंट अर्थ, जो अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू में स्टेशनरी है, या सिंक्रोनस, जिनका मोशन अर्थ के मोशन से सिंक्रोनाइज्ड है, उसे हम बोलते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स का कंसेप्ट क्या होता है, आप देखो, जैसे आपके पास ये अर्थ है और ये अर्थ की इक्वेटर है, एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो है 24 आवर। अगर अर्थ के ऊपर ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां आपका घर है, और इस घर से आपको एक सैटेलाइट जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे नजर आता है, सपोज वर्टिकली अपवर्ड आपको एक सैटेलाइट नजर आता है आपके घर से। अब आप सोचो, जितनी देर में अर्थ रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर में, उतनी ही देर में ये सैटेलाइट भी रोटेशन कंप्लीट करे, तो ये सैटेलाइट आपको हमेशा वर्टिकली ऊपर ही नजर आता रहेगा, या जिस भी पर्टिकुलर एंगल पे आपको ये सैटेलाइट नजर आ रहा है, ये उसी एंगल पे आपको सैटेलाइट हमेशा नजर आता रहेगा, क्योंकि इस सैटेलाइट को हमने इतनी हाइट पे रखा है कि इसका जो टाइम पीरियड है रोटेट सर्कल का अराउंड अर्थ, वो अर्थ के रोटेशन के इक्वल है। मोर ओवर, ना कि सिर्फ टाइम पीरियड, ये अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, अगर अर्थ इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, तो ये सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है हमारा अराउंड अर्थ। ये उसके ऑपोजिट अगर रोटेट करेगा तो ऐसा नहीं होएगा ना, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट आपका रोटेट कर रहा है। तो एवर वंडर्ड कि जो आपके डिश टीवी के एंटीना लगे हुए हैं ऊपर, वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ऑल दोज एंटीनास आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। तो हमें जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो 24 आवर के इक्वल रखनी पड़ेगी। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई विल शो यू। आपको सैटेलाइट का कंसेप्ट पता है कि जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की, वो इक्वल होती है √GM/, और इंस्टेड ऑफ कैपिटल R लेट अस से R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। और ये वाली वेलोसिटी से अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो हमें पता है जो ऑर्बिट है सैटेलाइट की वो हो जाएगी 2πr, कंसीडरिंग ऑर्बिट ऑलमोस्ट सर्कुलर,
divide by velocity, that is root gm, and this root r will come up because root r is in divide, so when it will come in numerator. So this time period must be equal to 24 hours. So hours से अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो we can do the necessary adjustment, 24 into 3600 सेकंड इन वाला, तो ये सेकंड में आ जाएगा टाइम हमारे पास। तो यहां से हमें स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, टी की वैल्यू हमारे पास है, तो मैं आर को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पावर 1 और 1/2, तो आर की पावर मैं लिख सकता हूँ 3/2 विच इज इक्वल टू 24 इंटू 3600 इंटू रूट जी एम। जी की वैल्यू आप पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ पुट करेंगे 6.2 इंटू 10⁻24 और डिवाइड में चला जाएगा आपके पास 2 पाई, तो ये आपके पास आर की पावर आ जाएगी 3/2। अगर हम आर निकालेंगे तो इस पूरे की पावर 3/2 थी, तो इधर तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 2/3, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हेन यू विल सोल्व दिस इक्वेशन using calculator, you can solve it, you will get that value of r, you will find approximately 42,400 किलोमीटर, ये आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर आपके सैटेलाइट की रेडियस ऑर्बिट की 42,400 किलोमीटर है, तो इसका मतलब यह है कि उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड आपका 24 आवर होगा, और अगर उसकी डायरेक्शन रोटेशन की अर्थ के रोटेशन से मैच है तो हम उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अगर आप इसकी हाइट कैलकुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपने कैलकुलेट किया ये तो आपने इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट किया ना, स्मॉल आर, जिसकी वैल्यू आपके पास आई 42,400 किलोमीटर। अगर आप इस सैटेलाइट की सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप 42,400 किलोमीटर में से 6,400 किलोमीटर की रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो आपके पास हाइट आ जाएगी 42,400 माइनस 6,400 36,000 किलोमीटर। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए पर्टिकुलर, जैसे आपने याद रखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू नियर सरफेस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, कांस्टेंट जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू। ऐसे ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उसकी हाइट अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर होगी, तो उसका जो टाइम, और वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा वेस्ट टू ईस्ट, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे का होगा। 24 घंटे का टाइम पीरियड होगा, उसकी हाइट होगी, इसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। तो दैट इज अवर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसके अलावा एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और बता के मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूं। हमारे पास कुछ सैटेलाइट ऐसे भी हैं जो इक्वेटोरियल प्लेन में ना घूम के, जो आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो कौन से प्लेन में होता है, वो आपका इक्वेटोरियल प्लेन में होता है और उसकी डायरेक्शन रोटेशन की अर्थ की रोटेशन से मैच होती है। लेकिन हमारे पास कुछ सैटेलाइट ऐसे भी हैं जो पोलर प्लेन में रोटेट करते हैं, यानी कि जैसे अगर आपके पास पोलर सैटेलाइट, उनको हम बोलते हैं, या फिर इनको हम स्पाई सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे विजिलेंस पर्पस के लिए डिफरेंट कंट्रीज इनको यूज करता है, तो इनको स्पाई सैटेलाइट्स भी कहते हैं। तो जैसे अगर आपके पास ये अर्थ है, ये अर्थ की इक्वेटर है, तो जो इक्वेटर पे घूम रहे हैं वो हमारे पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हो गए, एंड दो सैटेलाइट्स which are revolving in the polar orbit, when and if we keep their height also same, like 42,400 kilometer is the distance from center and height from surface of earth 36,000 kilometer, तो टाइम पीरियड तो इनका भी 24 आवर होएगा, they will make one revolution in 24 hours, बट जितनी देर में ये अर्थ के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे घूम के, उतनी देर में अर्थ भी अपने नीचे से एक चक्कर पूरा कर चुकी होगी, तो ये एक अपने हाफ साइकिल, मतलब इनके एक कंप्लीट साइकिल में पूरी अर्थ जो है वो इनके नीचे से एक बार स्कैन हो चुकी होगी, एंटायर अर्थ, तो इनके नीचे से जो एंटायर अर्थ है वो स्कैन हो चुकी होगी। यू माइट हैव सीन इन मूवी परमाणु दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद द स्पाई सैटेलाइट्स ऑफ अमेरिका, सो दैट कि वो पोखरण की साइड पे अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सके, तो वहां पे वो इन्हीं सैटेलाइट्स की बात कर रहे होते हैं जो आपके पोलर सैटेलाइट घूम रहे हैं। एंड every powerful nation or country is having their own satellites, अमेरिका के अपने हैं,
और रशिया के हैं और इंडिया के हैं, अपने सैटेलाइट्स हैं पोलर सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिन्हें हम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी कहते हैं, इनके बारे में एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको। इफ वी यूज 3 सैटेलाइट्स जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा अर्थ का, तो जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो हमारे जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं, अगर हम वो 3 सैटेलाइट्स यूज करें एट 120 डिग्री के गैप पे, अगर हम 3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट यूज करें तो हम एंटायर अर्थ को कवर कर सकते हैं। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट 1, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट 2, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट 3, तो ये आप एंटायर अर्थ को ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग लाइव टेलीकास्ट आजकल देख सकते हैं, जो दुनिया में कहीं से कहीं पे भी मैच हो रहा है, लाइक इफ योर कंट्री इज हियर, इंडिया इज हियर एंड सपोज अमेरिका इज हियर वेयर सम लाइव मैच इज गोइंग ऑन, तो अमेरिका से जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा इस सैटेलाइट को, यहां से ये सैटेलाइट सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा जियोसिंक्रोनाइज 2 को और जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट 1 को, स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट पाथ कम्युनिकेशन। और ये वाले जो सैटेलाइट है ये रिमेनिंग अर्थ के पोर्शन में इस सिग्नल को वापस ब्रॉडकास्ट करेंगे, जो आप रिसीव करके टेलीविजन से देख सकते हैं, और इस वाले एरिया में तो ये वाला सैटेलाइट खुद ही ट्रांसमिट कर देगा जिसको सिग्नल रिसीव हो गया किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ अर्थ से। So it is because of only geosynchronous satellites that in today's era we are able to see any live telecast from any point on the globe to any other point on the globe. Okay, I hope you enjoyed my lecture. If you are having any doubt, let me know in comment section or text me on my personal number, and we can also take your doubts in your live classes. Like always, thanks for watching. Take care. Bye bye.